Hello, welcome back once again in microcontroller and application subject. In the last lecture, we have completed the power saving mode and Boolean processor of 8051 microcontroller. Now, today's this lecture topic, the learning objective is describe memory organization of 8051 with neat sketch. In this particular session, we are going to understand in detail the memory organization of 8051 microcontroller. At the end of this lecture, you must be able to give the answer of the question, explain the memory structure of 8051 IC. At the end of this lecture, you must be able to explain properly the memory structure, the memory organization of 8051 microcontroller. So as we know already, the memory of 8051 microcontroller is of two types, ROM and RAM. So we are going to see in detail how the ROM is classified and how the RAM is organized. So both the organization we are going to see in this lecture. So what are the contents of today's lecture? First, we are going to see the introduction to memory organization of 8051 microcontroller. First, in the overview, we are going to observe how the memory is organized in 8051 microcontroller. Then we are going to see one by one part program memory, that is ROM of 8051 microcontroller, then data memory, that is RAM of 8051 microcontroller, and register banks, special function registers, and stack. So this is a register bank is also a part of memory only. So we are going to see in details also the register bank, which I have also already cleared you about the register banks. Now we are knowing how many register banks are there in 8051 microcontroller, but with the perspective of memory organization, we are going to see it more clearly. Also, we have also completed the topic of special function register. What is the memory location it is requiring a special function register. Once again, we are going to see as a part of memory organization. Then new thing is stack location, stack memory organization. So we are going to see this also, for which special register which is known as stack pointer is used for this purpose. So we are also going to see this stack. Now moving ahead, this is the concept map. What is the concept map? This concept map is explaining the total memory of 8051 microcontroller, which is the addition of data memory, that is RAM memory, and program memory, that is ROM memory. So program plus data is equals to total memory of 8051 microcontroller. So this is the concept map. It is illustrating us the total memory of 8051 is the addition of data memory as well as program memory. Now coming to the introduction part of memory organization of 8051 microcontroller. So as we already know, in 8051 microcontroller, there is on-chip memory provided by manufacturer. Can anybody tell me how many ROM memory is available and how much data memory is available in 8051 microcontroller IC? Can anybody give me the answer? On-chip ROM and on-chip RAM size of 8051 microcontroller? कितना होता है ऑन चिप रोम मेमोरी ऑन चिप रैम मेमोरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, जो मैन्युफैक्चरर हम लोग को प्रोवाइड करता है खुद से बाय डिफॉल्ट? रोम मेमोरी कितना है? 64 64 क्या चीज? बिट। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोम मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी जिसको बोलते हैं वो कितना है ऑन चिप? हम लोग ने फीचर्स में पढ़ चुके हैं इसको, 128 बाइट्स, फीचर्स में बता। 128 बाइट्स ये 128 बाइट्स रैम होता है, ठीक है। रैम मेमोरी 128 बाइट्स होता है, और प्रोग्राम मेमोरी कितना होता है? रोम मेमोरी जिसको बोलते हैं, ऑन चिप रोम रोम मेमोरी कितना किलो बाइट? 4 किलो रोम। वेरी गुड, 4 किलो बाइट। तो 4 किलो बाइट जो है वो प्रोग्राम मेमोरी होता है, रोम मेमोरी होता है, और 128 बाइट रैम मेमोरी होता है। ये ऑन चिप माइक्रो कंट्रोलर आईसी में पहले से मैन्युफैक्चरर हम लोग को देता है। अब इसके अलावा आपको और चाहिए तो इसके अलावा आप लोग 64 किलो बाइट तक जोड़ सकते हो, वो चीज़ मैंने बताया था आपको। यानी मेमोरी को आप एक्सपांड कितना तक कर सकते हो? तो मेमोरी को आप एक्सपांड कर सकते हो 64 किलो बाइट ऑफ मेमोरी तक एक्सपांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास एड्रेस लाइन कितनी है? माइक्रो कंट्रोलर 8051 में टोटल एड्रेस लाइन्स कितनी है? 16। तो 2⁻16 करोगे आप, तो 2⁻16 करने से आपको जो स्पेस मिलेगा, जो जगह मिलेगी, तो वो 64 किलो बाइट मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग जो मेमोरी एक्सपांड कर सकते हैं
वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन के ऊपर। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो टोटल एड्रेस लाइंस है वो कितनी एड्रेस लाइंस है, एड्रेस लाइंस एड्रेस बस वो 16 है। तो वो 16 के हिसाब से आप कितनी मेमोरी तक इंटरफेस कर सकते हो बाहर से भी, तो 64 किलोबाइट तक इंटरफेस कर सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो खुद से प्रोवाइड करता है वो इंटरनल कितना प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम मेमोरी 4 किलोबाइट और डेटा मेमोरी 128 बाइट रैम। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी इज सेपरेटेड इन, किसमें किसमें सेपरेट की हुई है, एक प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी है। प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम मेमोरी, डेटा मेमोरी यानी रैम मेमोरी। अब प्रोग्राम मेमोरी किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट सेविंग प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। कोई प्रोग्राम जो अब आपका एग्जीक्यूट होना है तो परमानेंटली कोई चीज़ जो सेव की हुई है, जैसे जब आप पीसी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में जो विंडोज आने तक का जो आइकॉन दिखता है वो प्रोग्राम मेमोरी में होता है, वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता ही होता है। whenever you start your PC, the thing the step which is executed वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोग्राम मेमोरी की वजह से होता है, रोम मेमोरी की वजह से होता है। तो बाय डिफॉल्ट स्टोर किया हुआ है, यानी वो इतना स्टेप एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, उतना स्टेप एग्जीक्यूट होना ही है। तो जो परमानेंट स्टोर किया हुआ है वो परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा जो एग्जीक्यूट होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोग्राम मेमोरी की वजह से होता है। और डेटा मेमोरी किस लिए यूज होती है, डेटा मेमोरी कोई टेम्पररी स्टोरेज के लिए, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हो, कोई डेटा के बीच में एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, तो आप टेम्पररी स्टोर कर रहे हो डेटा को, टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रहे हो, कुछ रिजल्ट को चेक करना है या वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना है या चेक करना है, मॉनिटर करना है। तो जब टेम्पररी पर्पस के लिए आप कहीं से डेटा स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, चेंज करते हो, तो वहाँ पे रैम मेमोरी का यूज होता है। तो रैम मेमोरी इज ऑलवेज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, रोम मेमोरी इज ऑलवेज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। तो जो प्रोग्राम पहले से फिक्स है, जो स्टेप में एग्जीक्यूट होना ही होना है, वो रोम मेमोरी में स्टोर होता है। और जो चीज़ आप प्रोग्राम लिख रहे हो टेम्पररी कोई चीज़ को चेक करने के लिए, अपने रिजल्ट को मॉनिटर करने के लिए, तो वो रैम मेमोरी में यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर 8051 की प्रोग्राम मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रोग्राम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग को ये चीज़ पहले क्लियर करना है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले से आपको ऑन चिप आईसी में कितना प्रोवाइड करता है, रोम 4 किलोबाइट। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप रोम मेमोरी कितना है, तो आपको इमीडिएटली आंसर देना है सर 4 किलोबाइट ऑफ रोम मेमोरी ऑन चिप होता है। अच्छा, तो उसको फिर एक्सपांड कर सकते कि नहीं कर सकते, बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते। यस, हम लोग इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, एक्सटर्नली बढ़ा सकते हैं। कितने तक बढ़ा सकते हैं, 64 किलोबाइट्स तक का बढ़ा सकते हैं। 64 किलोबाइट्स तक का मेमोरी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है 4 किलोबाइट, लेकिन एडिशनली हम लोग पहुंचा सकते हैं उसको कहाँ तक का, 64 किलोबाइट तक का पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं सर, एड्रेस लाइन उसमें 16 होती है, तो वो हिसाब से जो मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी का जो स्लॉट हो सकता है वो 64 किलोबाइट तक का हो सकता है। तो इन दिस वे यू हैव टू गिव देयर आंसर। तो मेमोरी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी में खुद से मैन्युफैक्चरर जो इनबिल्ड मेमोरी देता है वो कितना देता है, तो वो रोम मेमोरी 4 किलोबाइट देता है पहले से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ उतना ही यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम एक्स्ट्रा मेमोरी को जोड़ सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। तो दूसरी बाहर से आप मेमोरी को लेके आके आप इंटरफेस कर सकते हो अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, जगह बढ़ा सकते हो मेमोरी की। और वो कितने तक बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है आपके पास, 64 किलोबाइट। क्यों 64 किलोबाइट, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं क्योंकि एड्रेस बस की जो साइज़ है वो सिर्फ 16 है। और हम लोग ने ये फॉर्मूला स्टार्टिंग के लेक्चर में ही देख चुके थे कि एड्रेस बस की साइज़ के हिसाब से मेमोरी का लोकेशन होता है 2 एड्रेस लाइन का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, एड्रेस बस की साइज के ऊपर। आप कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाओगे तो वो डिपेंड करता है आपकी एड्रेस बस की साइज के ऊपर। तो जितनी एड्रेस बस की साइज होगी उतना नंबर ऑफ मेमोरी को आप जोड़ सकते हो। तो 16 एड्रेस बस साइज की वजह से, 16 नंबर ऑफ एड्रेस बस साइज होने की वजह से हम जो मैक्सिमम अपनी मेमोरी को जोड़ सकते हैं बाहर से एक्सटर्नली, वो कितने तक जोड़ सकते हैं, 64 किलोबाइट। आप लोग करके देखिएगा 2 16 कितना आता है। तो अगर 2 16 करोगे
in your calc you will get the answer 65,536. so approximately उस 65,536 को हम लोग 64 किलोबाइट्स बोलते हैं. ओके क्लियर. नाउ एक चीज हम लोग ने ये क्लियर किए थे जब हम लोग ने पिन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे. तो जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ना होता है, बाहर की एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करना होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो माइक्रो कंट्रोलर की एक पिन यूज होती है जिसका नाम है ईए पिन. इस ईए पिन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पिन? क्या बताया था? कौन बताएगा? ईए का फुल फॉर्म क्या है? ईए का किसी को याद है? चलो कोई बात नहीं, म्यूट रखो, म्यूट रखो. आप लोग अनम्यूट करें, मेरे को ऐसा लग रहा है जवाब दे रहे हो. इधर कोई जवाब नहीं दे रहा है. अनम्यूट ही कर दो, अच्छा है. ठीक है, तो इस ईए का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल एक्सेस. तो ये पिन का हम लोग ने फुल फॉर्म देखे थे एक्सटर्नल एक्सेस, यानी जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करना है तो ये पिन का यूज करना पड़ता है. तो दिस पिन, इसका नाम है एक्सटर्नल एक्सेस पिन. तो जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करना है, जोड़ना है, एक्सेस करना है, तो ये पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन को यूज करना पड़ता है. और इस पिन का हम लोग ने इस्तेमाल कैसा देखे थे? ये माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है ई एस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बार लिखा हुआ है. तो दिस बार इज मीन्स व्हाट? ये एक्टिव लो पिन है. एक्टिव लो पिन का मतलब क्या होता है? जब इस पिन पे 0 दिया जाएगा तो ये पिन एक्टिव होगी, और जब तक ये 1 है ये पिन एक्टिव नहीं है. बात समझ में आई? तो जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करना है, जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करना है, तो एक्सटर्नल मेमोरी का जब यूज करना है तो उसके लिए आपको ये पिन को क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा. तो जब ग्राउंड देंगे तो हम लोग डायरेक्टली एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करेंगे, एक्सेस करेंगे. और जब आपको इंटरनल मेमोरी का यूज करना है, तो इंटरनल मेमोरी यूज करने के लिए इंटरनल रोम मेमोरी यूज करना है. तो इंटरनल रोम मेमोरी के लिए इसको कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा? वीसीसी पे. वीसीसी मतलब क्या होता है? लॉजिक 1 पे. तो 1 देंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा, 0 देंगे तो ये पिन क्या होगा? एक्टिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? बार है. बार का मतलब क्या होता है? एक्टिव लो पे वो एनेबल होगा. एक्टिव लो सिग्नल देने पे वो क्या करेगा? काम करेगा. एक्टिव हाई पे वो एनेबल नहीं होगा. तो जब हम लोग को माइक्रो कंट्रोलर 8051 में बाहर की मेमोरी को जोड़ना होता है, इंटरफेस करना होता है, या बाहर की मेमोरी से डेटा एक्सेस करना होता है, तो इस माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईए बार पिन. तो इसलिए ये डायग्राम में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम में, मैं आपके सामने ये डायग्राम लेके आया हूँ जहाँ पे ये पूरे ईए बार का डिस्क्रिप्शन पूरा समझाया हुआ है आपको. ना कैसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जरा अच्छे से जरा आप लोग अंडरस्टैंड करो. मैं और इसको जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो दिस इज द डायग्राम. अब ये डायग्राम में आपको क्या बता रहा है, जरा ध्यान से आप लोग अंडरस्टैंड करो. जब आप माइक्रो कंट्रोलर 8051 की ईए बार पिन को वीसीसी पे कनेक्ट करोगे, तो वीसीसी पे कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक्सटर्नल एक्सेस नहीं कर रहे हो. अब आप किसका यूज कर रहे हो? इंटरनल मेमोरी का यूज कर रहे हो. तो जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की खुद की जो इनबिल्ट प्रोग्राम मेमोरी है 4 किलोबाइट, तो वो पहले यूज होगी, वो पहले यूज होगी. ईए बार पिन वीसीसी पे कनेक्ट करने की वजह से, ईए बार पिन वीसीसी पे कनेक्ट करने की वजह से पहली प्रायोरिटी जो मेमोरी की यूज होने वाली है वो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज होने वाली है, विच इज ऑफ हाउ मेनी बाइट? 4 किलोबाइट. तो उस 4 किलोबाइट मेमोरी का एड्रेस देखो क्या है. तो 4 किलोबाइट के लिए कितनी एड्रेस लाइन यूज होगी? 12 एड्रेस लाइन यूज होगी. फॉर 4 किलोबाइट हाउ मेनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स विल रिक्वायर्ड? टोटल एड्रेस लाइन, हाउ मेनी एड्रेस लाइन विल रिक्वायर? 12. आप करके देख लो. 2⁻10 को 1 किलोबाइट बोलते हैं, तो 4 किलोबाइट को कितना एड्रेस लाइन बोलेंगे? तो 2⁻10 यानी 10 एड्रेस लाइन जब यूज होगी तो कितना मेमोरी लोकेशन अब एक्सेस कर पाओगे? 1 किलोबाइट. अब उसी के आगे और बढ़ा दो, 2⁻11 कर दो. तो 2⁻11 करेंगे तो 2⁻11 करने में कितना किलोबाइट यूज कर पाएंगे? 2 किलोबाइट, क्योंकि 2⁻10 का 1 किलोबाइट होता है और वो अलग से 2⁻1 का 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1k इज इक्वल्स टू 2 किलोबाइट. अब मैं 4 किलोबाइट की बात कर रहा हूँ, तो 4 किलोबाइट के लिए क्या हो जाएगा?
4 किलोबाइट के लिए 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 रेज़ टू दी पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2, लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको पता होगा, a रेज़ टू दी पावर m इंटू a रेज़ टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है a रेज़ टू दी पावर m प्लस n, m प्लस n, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। यानी 4 किलोबाइट मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको कितनी एड्रेस लाइन लगेगी, 12 एड्रेस लाइन लगेगी। तो अपने पास एड्रेस तो 16 है, एड्रेस बस कितना है 16 है, लेकिन 4 किलोबाइट के लिए कितनी एड्रेस बस यूज होगी, 12 तक यूज होगी। तो ये जो आपको एफ 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 दिख रहा है ना, ये लोअर 4 1 है, फिर उसके बाद 4 1 है, फिर उसके बाद 4 1 है, और लास्ट का 4 यूज ही नहीं हो रहा है। टोटल एड्रेस कितना यूज हो रहा है, एड्रेस बस कितना यूज हो रहा है 4 किलोबाइट मेमोरी एक्सेस करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितना यूज हो रहा है, 12 यूज हो रहा है। हमारे पास एड्रेस बस कितना है 16 लाइन का है ना, 16 बिट का है। तो ये इंडिविजुअल हेक्साडेसिमल में, तो ये जो जीरो है ये किसका जीरो है, हेक्साडेसिमल का जीरो है। तो इस हेक्साडेसिमल जीरो में नॉर्मल बाइनरी के कितने जीरो है, 4 जीरो है ना। तो इस पर्टिकुलर 4 0 4 0 4 0 4 0 यानी टोटल कितने हो गए 4 + 4 + 4 + 4 16। तो ये जो 16 एड्रेस लाइन है, उस 16 एड्रेस लाइन का ये हेक्साडेसिमल में 4 0 में लिखा हुआ है। तो इसका एड्रेस, लास्ट एड्रेस 4 किलोबाइट का लास्ट एड्रेस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 किलोबाइट का जो लास्ट एड्रेस बनेगा, जो लास्ट की 4 है वो यूज नहीं हो रही है, लेकिन जो पूरी पहले की जो 12 है वो यूज हो रही है। तो पहले की जो 12 है वो यूज हो रही है, तो पहले की 12 लास्ट एड्रेस में क्या बनेगा, वो सब 1 1 1 1 1 1 रहेगा। तो 4 1 का हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 4 1 का हेक्साडेसिमल में क्या होता है f। तो ये f, ये f, ये f, और ये लास्ट का 4 यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 किलोबाइट मेमोरी का जो लास्ट एड्रेस होगा, जो लास्ट एड्रेस लोकेशन होगा, वो क्या रहेगा 0FFFH। ओके, बात समझ में आई। तो मैं ये आपको पूरा एड्रेस समझा रहा था कि 4 किलोबाइट में पहला मेमोरी एड्रेस क्या होगा और लास्ट मेमोरी एड्रेस क्या होगा। तो 4 किलोबाइट मेमोरी में पहला मेमोरी का एड्रेस जो होगा हेक्साडेसिमल में वो 000H होगा, और लास्ट जो मेमोरी एड्रेस होगा वो क्या होगा 0FFFH होगा। तो जब आप एक्सटर्नल एक्सेस पिन को VCC कनेक्ट करोगे, तो VCC का कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, पहले इंटरनल मेमोरी यूज होगा। अब जब ये मेमोरी पूरा यूज हो जाएगा तो उसके बाद एक्सटर्नल पे जाएगा। अब बाकी का जो बचा हुआ एक्सटर्नल कितना बचा, 4 किलोबाइट इंटरनल यूज हो गया, कितना जोड़ सकते हैं हम लोग 64 किलोबाइट तक जोड़ सकते हैं। तो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी 4 किलोबाइट यूज हुआ, बाकी का 60 किलोबाइट एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी आप यूज कर सकते हो। तो बाकी का एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी 60 किलोबाइट जो यूज कर सकते हो, तो उसका पहला एड्रेस क्या बनेगा। अब इसके बाद 0FFFH के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, ये 0 वाला क्या बनेगा 1, और बाकी सब क्या हो जाएगा 0। आपको पता है ना f के बाद क्या आता है हेक्साडेसिमल में, f के बाद हेक्साडेसिमल में नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, हेक्साडेसिमल का नंबरिंग पता है ना आपको, 0 से लेके कहाँ तक का पूरा पहले नंबर होता है, 0 आता है। हाँ 0 से लेके 9 होता है, 9 के बाद फिर 6 क्या आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं ABCDEF। फिर F के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है 1010H। हेक्साडेसिमल में F के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है 10H आता है। तो उसी तरीके से जब ये पहला लास्ट लोकेशन यूज हो गया, 4 किलोबाइट का लास्ट लोकेशन क्या यूज हुआ 0FFFH, तो इसके बाद का जो मेमोरी का एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा 1000H। तो 1000H से लेके लास्ट मेमोरी का एड्रेस क्या रहेगा FFFFH। तो इस तरीके से ये आपका 64 किलोबाइट रोम का यूज होता है। अगर EA बार पिन VCC पे रहेगा तो पहले इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज होगा 4 किलोबाइट का, फिर उसके बाद एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी 60 किलोबाइट का यूज होगा। तो इंटरनल के लिए एड्रेस क्या है 000H से लेके 0FFFH, और एक्सटर्नल के लिए एड्रेस क्या है 1000H से लेके 410FH। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो जब माइक्रो कंट्रोलर 8051 की पिन EA बार पिन अगर आप उसको ग्राउंड नहीं कनेक्ट करोगे, VCC पे कनेक्ट करोगे, तो पहले इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज होगा, फिर बाद में एक्सटर्नल होगा। लेकिन इसी का रिवर्स है, अगर आप डायरेक्टली पहले से ही EA बार पिन को ग्राउंड कर दो, अगर EA बार पिन को ग्राउंड कर दो,
सीधा डायरेक्टली आपने क्या बोल दिए, एक्सटर्नल एक्सेस। आप एक्सटर्नल एक्सेस को एनेबल कर दिए, तो एक्सटर्नल एक्सेस को एनेबल कर दिए तो अब माइक्रो कंट्रोलर 8051 अपनी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को यूज नहीं करेगा, वो डायरेक्टली 64 किलोबाइट की एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करेगा, यूज करेगा। तो ई ए बार पिन डायरेक्टली ग्राउंड करने की वजह से, ई ए बार पिन को अगर आप ग्राउंड पे कनेक्ट कर दोगे तो ग्राउंड को कनेक्ट करने की वजह से डायरेक्टली आपका एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस होगा ऑफ होल 64 किलोबाइट, जिसका एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस 000H, लास्ट एड्रेस FFFFH। तो ये जो H है वो हेक्साडेसिमल का एड्रेस है। तो पहला मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये रहेगा, लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये रहेगा। तो ई ए बार पिन डायरेक्टली ग्राउंड करने की वजह से पूरा 64 किलोबाइट एक्सटर्नल यूज होगा, लेकिन ई ए बार पिन वीसीसी पे कनेक्ट करने की वजह से पहले इंटरनल 4 किलोबाइट यूज होगा, फिर उसके बाद का एक्सटर्नल 60 किलोबाइट यूज होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो प्रोग्राम मेमोरी का यूटिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई ए बार पिन के ऊपर। तो अगर ई ए बार पिन वीसीसी पे रहेगा तो पहले इंटरनल 4 किलो यूज होगा, फिर बाद में आप एक्सटर्नल यूज कर पाओगे। और अगर डायरेक्टली ए बार पिन को ग्राउंड कर देते हो तो डायरेक्टली आप सीधा सीधा एक्सटर्नल 64 किलोबाइट को यूज करोगे। So the microcontroller handle external program based on the pin EA logical state। तो यही चीज मैं आपको इतना लंबा समझा रहा था। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक्सटर्नल मेमोरी को यूज किसके डिपेंड के ऊपर करेगा, ई ए बार पिन के स्टेटस के ऊपर से डिपेंड के हिसाब से करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन ई ए बार पिन लॉजिकल स्टेटस आपका प्रोग्राम मेमोरी का यूटिलाइजेशन होगा। आई होप आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने प्रोग्राम मेमोरी का अच्छे से क्लियर कर पाया होगा। Now coming back to another memory, that is RAM memory, data memory, RAM memory of 8051 microcontroller। So data memory of 8051 microcontroller कितना है, internal RAM memory जिसके बारे में हम लोग ने कर चुके हैं। So on chip RAM memory कितना होता है, 128 bytes। तो it is organized in 3 major areas। तो माइक्रोकंट्रोलर 8051 का जो इंटरनल रैम मेमोरी है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, और ये आपके सामने डायग्राम के सामने और वर्डिंग्स में भी लिखा हुआ है। तो ये 3 सेक्शन कौन कौन से हैं 128 बाइट्स रैम इंटरनल रैम मेमोरी के डिवाइड किए हुए। सबसे पहले ये जो 128 बाइट्स में 32 बाइट्स है वो ऑक्यूपाई किया है, किसने ऑक्यूपाई किया है, रजिस्टर बैंक्स ने। रजिस्टर बैंक्स जिसके बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर हाउ मेनी रजिस्टर बैंक्स आर देयर, कितने रजिस्टर बैंक्स है, 4। और वो चारों का नाम क्या है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। और हर बैंक में कितने रजिस्टर्स होते हैं, हर बैंक में कितने रजिस्टर्स होते हैं, 8, जिनका नाम क्या है, R0 से लेके R7। वेरी गुड। तो R0 टू R7 हर रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स होते हैं, इसलिए उसको रजिस्टर बैंक बोलते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स है। तो दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बैंक। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपको डायग्राम किस चीज का डिस्क्राइब कर रहा है, समझ में आया। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम 128 बाइट्स रैम का है। अब ये 128 बाइट्स रैम का पूरा क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो 32 बाइट्स 128 बाइट्स में से किसने ऑक्यूपाई किया है, रजिस्टर बैंक्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो रजिस्टर बैंक्स कितने रजिस्टर बैंक्स है, 4 रजिस्टर बैंक्स है। पहला रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। अब हर रजिस्टर बैंक में कितने टोटल रजिस्टर्स होते हैं, 8 रजिस्टर्स होते हैं, जिसका देखो नाम दिया हुआ है। हर रजिस्टर बैंक में R0 टू R7 रजिस्टर्स होते हैं। अब उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो एड्रेस देखो, रजिस्टर बैंक 0 का एड्रेस जो है वो 00H से खत्म कहाँ पे होता है, 07H, क्योंकि टोटल कितने रजिस्टर बैंक हैं, 8 रजिस्टर बैंक है। तो 8 के लिए ये नंबरिंग हो गई 00 से लेके 07। पहला रजिस्टर R0 उसका एड्रेस 00H है, और लास्ट वाला जो R7 है उसका एड्रेस 07H है। ठीक है, तो ये पहला 8 बाइट हो गया। तो फर्स्ट 8 बाइट 128 बाइट में से किसने ऑक्यूपाई किया, रजिस्टर बैंक 0 ने ऑक्यूपाई किया। अब इसी के बाद दूसरा रजिस्टर बैंक आता है। उस रजिस्टर बैंक में भी कितने रजिस्टर्स रहेंगे, 8 रहेंगे, R0 टू R7। अब उनका एड्रेस देखो क्या हो गया, 07H के बाद क्या आएगा, 08H आएगा। और 08H से लेके लास्ट जो 8 वाला जो नंबर होगा, नेक्स्ट लास्ट वाला R7 वाला, उसका एड्रेस क्या रहेगा, 0FH। हो गया ना 16। तो 00H से 0FH डेसिमल के 16 हो गए।
0fh हेक्साडेसिमल में, और डेसिमल में उसको क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। तो पहला वाले का एड्रेस 00h था, लास्ट वाले का एड्रेस 0fh था। तो ये रजिस्टर बैंक का हो गया। अब इसके बाद आएगा रजिस्टर बैंक 2। रजिस्टर बैंक 2 में वापस से वही 8 रजिस्टर्स यूज होंगे, लेकिन उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब 0fh के बाद क्या आएगा, 10h आएगा, 10h आएगा। लास्ट वाला इसका एड्रेस क्या आएगा, 17h होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा रजिस्टर आएगा, रजिस्टर बैंक 3 आएगा। रजिस्टर बैंक 3 का पहला एड्रेस क्या होगा, 18h होगा। लास्ट वाला एड्रेस क्या होगा, 1fh होगा। यानी रजिस्टर बैंक 3 का जो लास्ट वाला रजिस्टर R7 है, उस R7 का एड्रेस क्या होगा, 1fh होगा। बात समझ में आई। तो ये जो रजिस्टर बैंक्स है, इन हर रजिस्टर बैंक में टोटल कितने रजिस्टर्स है, 8 रजिस्टर है, और 8 रजिस्टर एक एक बाइट के होते हैं। हर रजिस्टर 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट्स। R0 is also 1 byte, R1 is also 1 byte, R2 is also 1 byte। तो इस तरीके से अपने पास टोटल कितने बाइट ऑक्यूपाई हो गए इन रजिस्टर बैंक्स में, 32 बाइट्स। क्योंकि हर रजिस्टर कितने बाइट का है, 1 बाइट का है। टोटल रजिस्टर्स कितने हुए, 32 हुए। तो कितना बाइट कवर हो गया, 32 बाइट कवर हो गया। सो बात चल रही थी यहाँ पे, सबसे पहली बात यही चल रही थी कि इंटरनल रैम 128 बाइट्स में से पहला जो 32 बाइट्स है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, रजिस्टर बैंक ने ऑक्यूपाई किया है। सो 128 बाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रजिस्टर बैंक, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 फ्रॉम 00h to 1fh 32 बाइट्स। तो सबसे पहला जो सेक्शन जो डिवाइड हुआ है वो 00h से लेके 1fh वो किसने ऑक्यूपाई किया, रजिस्टर बैंक्स ने ऑक्यूपाई किया है, 32 बाइट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, बिट एड्रेसेबल एरिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 16 बाइट है, 128 बाइट में से 32 बाइट्स रजिस्टर बैंक के, नेक्स्ट 16 बाइट जो है वो नाम दिया हुआ है बिट एड्रेसेबल रैम। ये बिट एड्रेसेबल याद आया आपको, हम लोग जो इसके पहले वाले लेक्चर में बूलियन ऑपरेशन में जो बिट एड्रेसेबल एरिया में बताया था, उसका खुद का बिट एड्रेसिंग एरिया होता है, मेमोरी होता है। तो वो यहाँ पे तो 128 बाइट इंटरनल रैम में अलग से 16 बाइट का जो रैम है वो एरिया किसको दिया गया है, बिट एड्रेसेबल रैम को दिया गया है। यानी ये वो मेमोरी स्लॉट है जहाँ पे सिर्फ सिंगल बिट के ऑपरेशन वाले एड्रेसिंग होते हैं। इधर पे सिंगल बिट के ऑपरेशन करने वाले एक्सेसिंग एरिया है ये। तो 16 बाइट दिया हुआ है आपको, किसके लिए दिया गया है, ये 128 बाइट में से बिट एड्रेसेबल एरिया के लिए दिया गया है। तो इतना मेमोरी स्लॉट अलग से आपने बूलियन प्रोसेसर को दिए। तो बूलियन प्रोसेसर के लिए आपने कितना दिए, 16 बाइट का बिट एड्रेसेबल रैम दिए। उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का है, 20h से लेके 2fh। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सब एड्रेस मार्किंग, कहाँ से कहाँ होता है। 1fh तक आपका 32 बाइट का रजिस्टर बैंक खत्म हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, 20h आएगा। 20h से 16 बाइट कहाँ पे खत्म होगा, 2fh पे खत्म होगा। तो 2fh पे खत्म होगा आपका ये 16 बाइट बिट एड्रेसेबल रैम। अब इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ है, कितना बचा, ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 48। तो 128 बाइट ऑफ रैम में से 48 बाइट्स आपका ये 2 सेक्शन में कवर हो गया। अब बाकी का कितना बचा, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मेनी बाइट इज रिमेनिंग, 32 प्लस 16 इज 80 बाइट। वेरी गुड। अब जो 80 बाइट जो जगह बची है रैम की, वो आप दे रहे हो जनरल पर्पस रजिस्टर को, स्क्रैच पैड एरिया को। यानी जनरल पर्पस एरिया जहाँ पे आप टेम्पररी कुछ भी डेटा वगैरह जो स्टोर करते हो, रजिस्टर को यूज़ करते हो, तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए दिया गया है। रफ एरिया है, रफ एरिया, रफ वर्क करने के लिए। हम लोग बोलते हैं ना रफ वर्क करने के लिए रफ पेज। तो ये इंटरनल रैम में जो 80 बाइट्स है वो स्क्रैच पैड एरिया है। स्क्रैच पैड एरिया मतलब एनी रफ वर्क, एनी टेम्पररी स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा जनरल पर्पस यूज़ के लिए, जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ के लिए, तो वो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल पर्पस के लिए आपको कोई रफ वर्क करने के लिए, इसके लिए यहाँ पे इसका एड्रेस जो रेंज है वो 30h से लेके 7fh 80 बाइट्स ऑफ रैम इज गिवन टू जनरल पर्पस के लिए, स्क्रैच पैड एरिया को दिया हुआ है। तो इस तरीके से 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो 128 बाइट रैम है वो क्लासीफाई किया हुआ है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन जो है, रैम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो रैम ऑर्गेनाइजेशन इज divided into 3 sections. The first section of 32 bytes is given to 4 register banks addressing from 00h to 1fh.
तो एड्रेसिंग फ्रॉम 00H to 1FH, ये 32 बाइट्स किसको दिया गया है? रजिस्टर बैंक्स को दिया गया है, 4 रजिस्टर बैंक को दिया गया है, उनमें डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट 16 बाइट जो है वो किसको दिया गया है? बिट एड्रेसेबल एरिया को दिया गया है, बिट एड्रेसेबल रैम एरिया, एड्रेसिंग रेंज फ्रॉम 20H to 2FH, एंड द लास्ट 80 बाइट that is addressing range from 30H to 7FH is given to scratch pad area, scratch pad RAM area, रफ वर्क करने के लिए एरिया को दिया गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब इसके बाद का क्या होता है? इसके बाद का हम लोग ने देखो पहले कर चुके थे। 7F के बाद क्या आएगा? कौन मुझे बता सकता है 7F के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? 7FH के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? हेक्साडेसिमल में 7FH खत्म होने के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? जैसे 2FH के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आया था? 30H आया था, तो वैसे ही 7FH के बाद कौन सा नंबर आएगा? 80H। 80H, वेरी गुड, 80H आएगा। तो इसके बाद ये देखो हम लोग ने जो SFRs कर चुके थे ना, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका था, एड्रेसिंग रेंज फ्रॉम 80H टू FFH। तो ये जो आपका पूरा 128 बाइट्स है अपर बाइट, ये आपका किसके लिए दिया हुआ है? सब पूरा अलॉट किया हुआ है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ये एड्रेस जो हम लोग ने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर देखे, पोर्ट्स P0, P1, P2, P3, टाइमर मोड, PCON, ये सब आपके आगे के एड्रेस रेंज में आते हैं। तो अपर 128 बाइट्स, तो इंटरनल रैम आपका 128 बाइट का क्लियर है, वो इंटरनल रैम मेमोरी होता है आपका, यूज़ होता है ऑन चिप रैम मेमोरी, वो उसमें उस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। बाकी अपर का जो 128 बाइट्स है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ये सारे रजिस्टर्स आते हैं। कौन कौन सा रजिस्टर आते हैं? एक्यूमुलेटर आता है, टाइमर के रजिस्टर्स आते हैं, इंटरप्ट के रजिस्टर्स आते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के रजिस्टर आते हैं, PSW आता है, फ्लैग रजिस्टर आता है, जिनका सबका एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो हर एक का, हर रजिस्टर का एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो अपर 128 बाइट इज ऑक्यूपाइड बाय स्पेशल फंक्शन रजिस्टर विच वी ऑलरेडी क्लियर वेरी वेल, जो हम लोग ने बहुत पहले इसको क्लियर कर चुके हैं। तो कमिंग बैक टू प्रीवियस, अब मैं बात कर रहा था ये जो आपका रजिस्टर बैंक की बात कर रहा था, तो रजिस्टर बैंक में आपको क्लियर हो रहा है इस तरीके से रजिस्टर बैंक क्लासीफाई किए हुए। तो 8051 के कितने रजिस्टर बैंक है? 4 रजिस्टर बैंक है, और हर रजिस्टर बैंक में कितने रजिस्टर्स होते हैं? 8 रजिस्टर होते हैं। तो जैसे कि ये बैंक 0 आपको दिख रहा है, तो बैंक 0 में टोटल कितने रजिस्टर्स होंगे? 8 रजिस्टर्स होंगे, नंबरिंग फ्रॉम, नेमिंग फ्रॉम R0 टू R7। तो पहला वाला जो रजिस्टर R0 है उसका एड्रेस क्या होगा? 00H। लास्ट वाले का क्या एड्रेस होगा? 07H। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे बैंक 1 में, तो बैंक 1 के 8 रजिस्टर्स है जिसका नेमिंग भी वही होगा R0 टू R7, लेकिन एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब बैंक 1 का जो पहला R0 है उसका एड्रेस क्या बनेगा? 8, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, फिर हेक्साडेसिमल में 9 के बाद क्या आता है? ABCDEF। तो जो लास्ट वाला जो है बैंक 1 का लास्ट वाला रजिस्टर R7, उसका एड्रेस क्या बनेगा? 0FH बनेगा। अब बैंक 2 की तरफ जाएंगे, तो बैंक 2 की तरफ भी वापस से 8 रजिस्टर्स होंगे। अब उसमें जो R0 है, अब उसका एड्रेस क्या बन जाएगा? 10H बनेगा, क्योंकि 0FH के बाद, हेक्साडेसिमल F के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो क्या आता है? 10H आता है। तो 10H होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो बैंक 2 का जो लास्ट रजिस्टर है R7, उसका एड्रेस क्या बनेगा? 17H बनेगा। इसी तरीके से कंटिन्यू करोगे तो बैंक 3 जो लास्ट रजिस्टर बैंक है उसमें पहला रजिस्टर जो R0 है उसका एड्रेस रहेगा 18H, और लास्ट वाले का एड्रेस रहेगा 1FH। तो ये सारे नंबरिंग इस तरीके से करते हैं हम लोग एड्रेस के साथ में। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो बैंक आप सिलेक्ट कर रहे हो ना वो बैंक के हिसाब से उसका एड्रेस बनेगा। तो वो रजिस्टर्स वही रहते हैं R0 टू R7, लेकिन अलग बैंक सिलेक्ट करने की वजह से उनका एड्रेस चेंज हो जाता है, उनका इंटरनल रैम का एड्रेस चेंज हो जाता है रजिस्टर्स R0 टू R7 ही, लेकिन उनका मेमोरी का जो एड्रेस है ना वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो बैंक 1 के हिसाब से वो नंबरिंग के एड्रेस होगा, बैंक 3 के हिसाब से वो एड्रेस यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द टर्न इज टू अटेम्प्ट क्वेश्चन सेट 1, अटेम्प्ट MCQ सेट 1। तो MCQ सेट 1 को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। नाउ क्या है इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 इज। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 कितना है? 32 बाइट है, 64 बाइट है, 128
128 बाइट, वेरी गुड। तो अभी हम लोग ने पूरा 128 क्लासिफिकेशन बाइट। देखे थे। तो इंटरनल, वेरी गुड। तो 128 बाइट 8051 इंटरनल रैम मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन, state the bit addressing range of addressable individual bit over the on chip RAM। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, state the bit addressing range of addressable individual bits over the on chip RAM। यानी इंटरनल रैम मेमोरी में जो बिट एड्रेसेबल सेक्शन है उनका एड्रेसिंग रेंज क्या है वो बताओ। यानी बिट एड्रेसेबल जो 16 बाइट बिट एड्रेसेबल एरिया है उसका एड्रेस रेंज क्या है, वो कौन से एड्रेस से लेके कौन सा एड्रेस तक का ऑक्यूपाई किया हुआ है इंटरनल रैम में। तो वो 00H से FFH है, 01H से 7FH है, या 20H से 2FH है, या 80H से FFH है। तो अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे वो बिट एड्रेसेबल एरिया का एड्रेस रेंज, तो आप इसका जवाब दे पाओगे। 20H to 2FH। 20H to 2FH। 20 वेरी to गुड, वेरी गुड, 2FH। यस करेक्ट। तो आप लोग ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब सो 20H to 2FH ये एड्रेस रेंज आपका किसका है, बिट एड्रेसेबल एरिया का एड्रेस रेंज है। ओके, तो ये देखो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। ये बिट एड्रेसेबल एरिया के बदले में आपको क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकता है, गिव द एड्रेस रेंज ऑफ 32 बाइट रजिस्टर बैंक, उसका एड्रेस रेंज क्या है। तो फिर वहाँ पे आपको उस तरीके से करेक्ट करना पड़ेगा। ये सब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल रहा है, मतलब इसके अलग से आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, डैश इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर R1 इन द रजिस्टर बैंक 1। तो रजिस्टर बैंक 1 में R1 का रजिस्टर क्या है, 07H। क्या बोले आप? 07H सर्वन ए 09H। 098। 09H इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? रजिस्टर R1 ऑफ बैंक 1, तो रजिस्टर R1 ऑफ बैंक 1, तो पहला R0 होता है फिर R1 आता है। तो R0 to R7 बैंक 0 का हो गया, 0 से लेकर 07H। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 0809, तो R1 बैंक 1 उसका क्या एड्रेस आएगा, 09H आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब आना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। ये 17H किसका है, ये 1FH किसका है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। तो 1FH इज द R7 ऑफ बैंक 3, समझ में आया? या 1FH एड्रेस किसका रहेगा, बैंक 3 का R7 रजिस्टर का एड्रेस है, जो लास्ट एड्रेस है वो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था रजिस्टर R1 ऑफ बैंक 1, रजिस्टर R1 ऑफ रजिस्टर बैंक 1, तो उसका एड्रेस 09, जो अभी हम लोग ने क्लियर किया यहाँ पे, देखा आपको। तो ये बैंक 1 रजिस्टर R1 उसका एड्रेस क्या है, 09H। तो ऐसा किसका भी पूछ सकता है, वो बोल देगा रजिस्टर बैंक 3 का R7 का एड्रेस बताओ, तो 1FH। तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, आपको पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। आप अगर क्लियर रखोगे तो यू आर एबल टू गिव द आंसर। लेट अस चेक, मैंने अपना जो भी आंसर है आपको करेक्ट बताया कि नहीं बताया। ओके, तो पहले वाले का आंसर सी करेक्ट है, सेकंड वाले का भी आंसर सी 20H to 2FH एड्रेस रेंज है बिट एड्रेसेबल का। थर्ड वाले का आंसर बी 09H। तो दिस मच क्वेश्चन इज करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो जो चीज़ हम लोग ने किए थे। तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का ऑलरेडी हम लोग ने कवर किए थे। ये जो 128 बाइट रैम यूज़ हो गया ना, ये 128 बाइट रैम यूज़ हो गया, यानी 7FH हो गया। अब इसके बाद जो 128 बाइट है वो किस में ऑक्यूपाई होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ऑक्यूपाई होता है, यानी एड्रेसिंग 80H to FFH। तो 80H से लेके FFH, ये 80H से लेके FFH दो अपर 128 बाइट है, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑक्यूपाई करता है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो यूज़ होते हैं उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी ये डायग्राम को देख चुके थे, अंडरस्टैंड किए थे, क्लियर किए थे। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टैक मेमोरी, स्टैक एरिया। तो ये जो स्टैक मेमोरी है ये कहाँ पे यूज़ होता है और कौन सा इसके लिए स्पेशल रजिस्टर यूज़ होता है, वो ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। सो द स्टैक एरिया इन 8051 कैन ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरनल डेटा मेमोरी। तो आप स्टैक एरिया को आप कभी भी आप बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो डेटा मेमोरी में, रैम मेमोरी में। स्टैक एरिया मतलब जो रफ एरिया के लिए यूज़ होता है, रफ वर्क पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल आपको जो टेम्पररी स्टोरेज वगैरह करना है तो उसको बोलते हैं वो स्टैक एरिया।
तो स्टैक पॉइंटर इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है SP, जो स्टैक मेमोरी के लिए यूज़ होता है। स्टैक मेमोरी से डेटा लेके आना, डेटा लेके पहुंचाना, वो किसके थ्रू होता है? ये रजिस्टर के थ्रू होता है, जिसका नाम क्या है? स्टैक पॉइंटर। तो इंटरनल रैम मेमोरी में आप स्टैक एरिया कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उस स्टैक एरिया से रिलेटेड आपको डेटा लेके आना, पहुंचाना, देना, वो किसके थ्रू होगा? उस रजिस्टर का नाम है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को ले सकते हो, डेटा को दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द इंटरनल रैम एरिया इज ओनली इन रेंज फ्रॉम 00 to 7FH। तो इसका जो एड्रेस रेंज जो दिया हुआ है आपको 00H to 7FH करके दिया हुआ है। जो हम लोग ने अभी इंटरनल रैम एरिया देखे, हम लोग ने इंटरनल रैम एरिया जो 128 बाइट का इंटरनल रैम एरिया देखे, वो एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक का है? 00H से लेके 7FH तक। एंड व्हेन ऑल रजिस्टर बैंक्स आर बीइंग यूज्ड द स्टैक लोकेशन विल बी रेंज फ्रॉम 30H to 7FH। तो ये जो स्टैक एरिया है ना, आप ये पूरे 128 बाइट रैम में से कहीं पे भी बना सकते हो। जो 128 बाइट का आपने जो देखे, ये जो 128 बाइट का पूरा जो लोकेशन आपने देखे, जो 00H से लेके 7FH, इसमें से आप कहीं पे भी आप अपना स्टैक एरिया बना सकते हो। स्टैक एरिया आप कहीं पे भी बना सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अगर ये पूरे एड्रेस रेंज में से 00H से लेके 7FH में अगर रजिस्टर बैंक सारे यूज होते हैं, सारे रजिस्टर बैंक ऑक्यूपाई होते हैं, जिनका एड्रेस रेंज अभी हम लोग ने देखे थे, जिनका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक का होता है, सारे रजिस्टर बैंक ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अगर आप सारे रजिस्टर बैंक को यूज कर रहे हो, 00H से लेके 1FH ये पूरा यूज हो रहा है, और इसके अलावा अगर ये 20H to 2FH भी यूज हो रहा है 16 बाइट बिट एड्रेसेबल में, तो बचा हुआ एरिया क्या है आपके पास? स्क्रैच पैड एरिया क्या है आपके पास? 30H से लेके 7FH। तो ये 30H से लेके 7FH एरिया को आप क्या बना सकते हो? स्टैक एरिया बना सकते हो, स्क्रैच पैड एरिया बना सकते हो, रफ एरिया बना सकते हो। तो ये 128 बाइट ऑफ रैम में आपका 32 बाइट तो रजिस्टर बैंक यूज हो रहा है, 16 बाइट बिट एड्रेसेबल यूज हो रहा है, बाकी का 80 बाइट जो बचा हुआ है, 80 बाइट जो बचा हुआ है, जिसको स्क्रैच पैड एरिया बोलते हैं, उसका जो आप रेंज दे सकते हो वो 30H to 7FH तक दे सकते हो। तो इन सच केस अब स्टैक पॉइंटर को आपको इनिशियलाइज कहाँ पे करना पड़ेगा? जब आप एरिया 30H to 7FH यूज करोगे स्क्रैच पैड एरिया का, तो उस केस में आपको स्टैक पॉइंटर को कहाँ से इनिशियलाइज करना है? वो इनिशियलाइजेशन आपको करना है 2FH से। हमेशा एक मेमोरी लोकेशन पहले से आपको स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। जब भी आप स्टैक मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो, अगर एग्जैक्ट लोकेशन जो आपको स्टैक का एक्सेस करना है 30H, तो स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर है, तो अगर 30H को आप एक्सेस कराना चाहते हो, तो इनिशियली पहले से आपको स्टैक पॉइंटर को एक मेमोरी लोकेशन पहले से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वो एक नंबर पहला, एक मेमोरी लोकेशन पहला क्या आएगा? 30H के पहले एक मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा? 2FH है, 2FH। तो 2FH से आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टैक पॉइंटर जो है वो जो डेटा एक्सेस करेगा वो कौन से मेमोरी लोकेशन का एक्सेस करेगा? 30H का। इसके बारे में और हम लोग अभी जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टैक पॉइंटर ऐसा रजिस्टर है, तो जब भी आपको स्टैक मेमोरी का डेटा एक्सेस करना होता है, तो उसको इनिशियली पहले से एक मेमोरी लोकेशन पहले के नंबर से उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली अपने को एक मेमोरी लोकेशन से इंक्रीज करता है और काम करता है। तो जब भी आपको 30H मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्सेस करना है, तो स्टैक पॉइंटर को एक मेमोरी लोकेशन कम से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो 30H मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट जब स्टैक पॉइंटर रीसेट होता है तो वो कौन सा एड्रेस लोकेशन कंटेन करता है? 07H एक्सेस कंटेन करता है। तो स्टैक पॉइंटर इज अ रजिस्टर विच इज यूज फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम स्टैक मेमोरी। अब ये स्टैक मेमोरी कौन सी है? जो 80 बाइट्स आपके इंटरनल रैम में है, स्क्रैच पैड एरिया है, वो आपका स्टैक मेमोरी है, जो टेम्पररी डेटा वगैरह लिया जाता है, दिया जाता है। और स्पेशली उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज होता है। तो यहाँ पे एटम MCQ सेट 2 आ गया है। तो एटम MCQ सेट 2 क्या है, इसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज एटम MCQ सेट 2? सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द टोटल एक्सटर्नल डेटा मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस टू 8051 इज। तो जो टोटल एक्सटर्नल डेटा मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर को, कितना कर सकते हो? कितना कर सकते हैं हम लोग?
32 किलोबाइट, 64 किलोबाइट, 128 बाइट, 256 किलोबाइट, कितना? 64 के 64 किलोबाइट, वेरी गुड। तो 64 किलोबाइट कर सकते हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है सिर्फ 64 किलोबाइट क्यों? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बस कौन सी के लाइन? ऊपर, एड्रेस बस के ऊपर। एड्रेस बसेस। एड्रेस बस, वेरी गुड। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस बस कितनी है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस बस कितनी है? 10 है, 5 है, 12 है? 16। 16, वेरी गुड। 16 है। ओके, वेरी गुड, 16 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेट द लोकेशंस ऑफ 128 बाइट्स ऑन चिप रैम एड्रेस रैम दैट इज जनरली रिजर्व फॉर स्पेशल फंक्शन। तो वो 128 बाइट ऑन चिप एडिशन रैम जो उसका आप रिजर्व करते हो स्पेशल फंक्शन के लिए, उसका एड्रेस रेंज क्या है? उसका TH2 एड्रेस, 07 वेरी गुड, 80H to FFH। अभी हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात कर रहे थे। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो 128 बाइट है वो अपर 128 बाइट है, जिसका एड्रेस रेंज कहाँ से होता है? 80H से लेके FFH तक होता है। सो 80H to FFH इज द 128 बाइट अपर 128 बाइट दैट इज एडिशनली रैम गिवन टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत समझा रहा था रॉम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेट द डिवीजन range of program memory for internal and external memory respectively when enable access pin is held high। तो जब आप enable access pin को high पे रखते हो तो फिर वो मेमोरी का जो डिवीजन है उसका एड्रेस कैसा होता है वो मुझे बताना है इधर पे आपको। तो जब EA बार पिन इसको 1 पे रखते हैं, VCC पे रखते हैं, तो अपनी मेमोरी का डिवीजन कैसा होता है? कौन सी मेमोरी पहले यूज होती है, कहाँ से कहाँ तक का उसका एड्रेस रेंज यूज होता है? कौन बताएगा इसका आंसर? तो व्हेन EA बार पिन इज हाई, जब EA बार पिन को आप VCC पे कनेक्ट करते हो तो मेमोरी का जो एड्रेस रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक का यूज होता है? कौन कौन सा मेमोरी एड्रेस रेंज यूज होता है? कौन बताएगा इसमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है? 000H से लेके 0FFH, ये क्या है? ये किसका एड्रेस रेंज है? ये एड्रेस रेंज किसका है? कौन सी मेमोरी का है? इंटरनल है या एक्सटर्नल? ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस किसका है? इंटरनल मेमोरी का है कि एक्सटर्नल मेमोरी का है? इंटरनल है सर। इंटरनल, वेरी गुड। तो जब EA बार पिन 1 रखते हैं तो पहले आपका इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी यूज होगा। तो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी जो 4 किलोबाइट है वो यूज होगा। तो उसका एड्रेस रेंज क्या होगा? 000H से लेके 0FFH है। और जब इंटरनल यूज हो जाएगा तब उसके बाद एक्सटर्नल यूज होगा। तो एक्सटर्नल का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके बाद से। तो 1000H से लेके लास्ट एड्रेस क्या बनेगा? FFH। तो पहला 4 किलोबाइट इंटरनल, फिर एक्सटर्नल 60 किलोबाइट। इस तरीके से ये EA बार पिन जब VCC पे कनेक्ट करोगे, और अगर EA बार पिन डायरेक्टली ग्राउंड पे यूज करोगे तो डायरेक्टली आपका कौन सा यूज होगा? एक्सटर्नल मेमोरी यूज होगा, जिसका एड्रेस कहाँ से यूज होने वाला है? 000H से लेके लास्ट एड्रेस क्या बनेगा? FFH। तो जब EA पिन ग्राउंड करते हैं तो डायरेक्टली एक्सटर्नल मेमोरी यूज होता है, और जब EA पिन को VCC करते हैं तो पहले इंटरनल यूज होगा फिर बाद में एक्सटर्नल यूज होगा। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ का आंसर आपको देने आना चाहिए प्रॉपरली। तो ये पहला वाला आंसर करेक्ट है, सेकंड का भी फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन का 64 किलोबाइट करेक्ट है। आई होप आप लोग को मेमोरी का भी फंडा समझ में आया होगा। सो समरी क्या है? 8051 हैज 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम एंड 4 किलोबाइट्स ऑफ इंटरनल रोम। तो 8051 में ऑन चिप रैम मेमोरी कितना है? 128 बाइट, और रोम मेमोरी कितना है? 4 किलोबाइट। एक्सटर्नल मेमोरी आप कितना तक जोड़ सकते हो? 64 किलोबाइट तक, 64 किलोबाइट तक यूज़ कर सकते हो। और बाकी आपको रैम का क्लासिफिकेशन समझ में आया? ये रैम का क्लासिफिकेशन 128 बाइट का किस में डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है? पहला 32 बाइट रजिस्टर बैंक, दूसरा 16 बाइट बिट एड्रेसेबल एरिया, और लास्ट का 80 बाइट स्क्रैच पैड एरिया स्टैक मेमोरी।
ठीक है। और रोम का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, ई ए बार पिन के ऊपर होता है। ई ए बार पिन VCC रखोगे तो पहले इंटरनल यूज़ होगा, फिर बाद में एक्सटर्नल यूज़ होगा। और ई ए बार पिन को पहले से ग्राउंड कर दोगे तो डायरेक्टली सीधा 64 किलोबाइट एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होगा। So in this way, we have completed the topic of memory organization of 8051. I hope you must have been understood properly very well. If something is not understood by you, something is not properly understood by you, can comment me, message me. Definitely, I will explain you once again to my best. That's all for today's lecture. Thank you very much, everybody, for joining this thing. Thank you very much.